السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، سال 2025 کا چاند گرین چاند گرین جو آ رہا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس کے بارے میں دو تین ڈاؤٹ ہے، میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ چاند گرین آتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ سورج گرین آتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اگر پاکستان میں رہتے ہو یا دوسرے کسی ملک میں رہتے ہو تو ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کبھی کبھار جب ایام بیس کے دن ہوتے ہیں یا کسی بھی حالت میں بعض دفعہ بارش کے دوران یا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں بذات ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور وہ ملٹیپل یعنی مختلف وقتوں میں مختلف ٹائم پہ ہمیں نظر آتا ہے، کبھی صبح کے ٹائم، کبھی شام رات کو، آدھی رات کو، کبھی مغرب کے بعد، مختلف ٹائم پہ ہمیں چاند کی گرین نظر آتی ہے اور ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مہینے میں 10 10، 2 2، ایک مرتبہ، یا بعض دفعہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن بعض دفعہ بہت زیادہ بھی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ میں نے یہاں پہ کہا کہ چاند گرین سال میں ایک مرتبہ اور سورج گرین سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یا دو مرتبہ آتا ہے، جس کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں یہ فرق واضح کر لوں، کیونکہ یہ بہت بہت ہی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے، بہت ہی زیادہ گہرا معاملہ ہے، اور اگر آج اس بار 2025 14 مارچ 2025 بروز جمعہ کی اگر میں بات کر لوں تو یہ تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح 8 بجے اس نے سٹارٹ ہونا ہے، یعنی دن کے 9 بجے شروعات ہوگی، صبح 8:57 پہ ہے تو شروعات یعنی 9 بجے صحیح ٹائم ہے۔ تو یہ تو دن ہے، یہاں پہ چاند کا کیا لینا دینا، ہمیں کون سا نظر آتا ہے؟ ان تمام ڈاؤٹوں کو بھی کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس کو میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، حروف ثوابت کا اس میں بات کروں گا، اور اس کے علاوہ دو اعمال اور ہے اس پہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب آتے ہیں پہلی بات پہ کہ جو چاند گرین ہم دیکھتے ہیں عام روٹین میں، کبھی دن میں رات کو دیکھتے ہیں، کبھی صبح کے ٹائم دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم سحری کرتے ہیں، یا عام دنوں میں جب ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وہ جو سورج گرہن ہوتے ہیں وہ ہمارے موجودہ وقت کے حساب سے حالات اور موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے ہو جانے والا سورج گرہن ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ لیکن جو دوسرا ہے، یہ عاملین یا علم نجوم، جو علم نجومی لوگ ہیں، علم نجومی حضرات، ان کا دیا ہوا سورج گرہن اور چاند گرہن ہے۔ اس لیے یہ سال میں ایک یا دو، غالباً میں بول رہا ہوں شاید 2 مرتبہ سورج گرہن ہے اور 2 مرتبہ چاند گرہن ہے، کہ ایک مرتبہ چاند گرہن ہے، ایک مرتبہ سورج گرہن ہے، میں اس میں بول رہا ہوں، لیکن جو عاملین کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ایک عمل ہے، ایک تحفہ ہے، کہ یہ سال میں بس یہی مارچ ہوگی اور یہی ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق آپ کو واضح نظر آ گئی۔ ایک علم نجومی جو اس علم کو، یعنی شمس کو، ظہر کو، مریخ کو، ان تمام کو جانتے ہیں، ان تمام سیاروں پہ وہ کام کرتے ہیں، ان علم نجوم کی طرف سے جو ملا ہے وہ یہ ہے، اور جو عام ملتا ہے وہ علم نجوم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر سے جو گزرتا ہے اور پھر ہم اس میں اعمال کریں یا نہ کریں، اور وہ بعض دفعہ ساری ساری رات ہوتا ہے یا بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گئی کہ دو کون سے مختلف ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال، ایک اور سوال ہے کہ دن کو پاکستانی ٹائم، اب کیونکہ جمعہ کے دن ہے اور پاکستانی 8 بجے ہے، تو وہاں تو چاند ہے ہی نہیں، چاند تو رات کی نظر آنے والی چیز ہے، دن کو تو سورج نکل آتا ہے، یہاں تو سورج گرین ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چاند گرین ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے، پرکھنے والی بات ہے کہ دن میں چاند کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس بات کو یاد رکھ لینا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ہمارا درمیانی ٹائم ہے، درمیانی وقفہ ہے، وہ غالباً 2 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے پہ مشتمل ہے، لیکن اگر ہم پڑوس ملک کی بات کریں تو وہ صرف ہم سے 30 منٹ آگے ہیں کہ پیچھے ہیں، میرے خیال سے آگے ہے 30 منٹ۔ اسی طرح یو کے ہم سے 7 گھنٹے پیچھے ہیں، 7 گھنٹے یعنی پیچھے ہیں۔ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ یو کے میں صبح کے، ہم پاکستان میں صبح کے فجر ہو رہی ہے، صبح کے 7 8 بجے ہے، تو وہاں پہ رات کے ہو سکتے ہیں کہ 11 بجے بھی ہو، کچھ جگہوں میں 12 بھی ہو سکتے ہیں، کچھ جگہوں میں رات کے 9 بجے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ
सुबह है। कहने का मतलब ये है कि चांद ग्रीन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उन मुल्कों में है जहाँ पे उस वक्त रात होगी। ये हर छोटे बच्चे को, छोटे और बड़े को पता है कि वक्त बदलता रहता है। तो क्या हमें इसमें आमाल करनी चाहिए? ये भी एक सवाल है ना कि चांद ग्रीन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसमें आमाल करना, हमें करना चाहिए। तो इसका जवाब है जी हाँ। जी हाँ, करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इल्म नजूमी आमाल है। इल्म नजूमी से मुराद ये कि ये जो हमें इल्म नजूमी लोगों से मिले हुए आमाल है, उसी के जरिए ही हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पे काम करते हैं। अगर यही अमल हम ना करें तो हमें कोई हर्ज नहीं। या ये भी समझ ले कि हमें, हमारे ऊपर, हमारा, हम पाकिस्तान में रहते तो चांद ग्रीन का हमारे ऊपर कोई दखल ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ऊपर कोई दखल ही नहीं है, हमारे ऊपर तो उस वक्त सूरज की किरणों का दखल होगा। हमारे ऊपर तो उस वक्त सूरज की किरणें लगी होगी। चांद ग्रीन का दखल हमारे ऊपर नहीं होगा। उन लोगों के ऊपर इसका असर हो सकता है जो उस वक्त उसकी रोशनी में मौजूद हो। कमरे के अंदर लाइट है, तो लाइट वाले लोग ही उस रोशनी से फायदा ले सकते हैं। कमरे के बाहर वाले लोग उस रोशनी से फायदा नहीं ले सकते। ये बात याद रख लेना। इसी तरह चांद ग्रीन का हमारी जिंदगी पे कोई दखल अंदाजी मौजूदा इस दफा में नहीं है, क्योंकि ये दिन को है। लेकिन बतौर आमिल, बतौर इल्म नजूम, बतौर अमलियात, बतौर वज़ाइफ, बतौर मुशाहिदात और बतौर तजर्बात, हम पे ये लाजिम है, या हम अपने ऊपर ये लाजिम कर सकते हैं कि इस वक्त, इस दिन, इस मखसूस वक्त में, मखसूस अयाम में 40 दिन का पढ़ाई, 40 दिन का चिल्ला सिर्फ 2-3 घंटों में समेट के अपने ऊपर मुख्तसर कर ले, या अपने ऊपर लाजिम कर ले। यहाँ पे ये बात भी खुलेआम नजर आ जाती है कि जो लोग कहते हैं कि हमने 1 मिनट में चिल्ला करना है, 1 घंटे में परी हाजिर करनी है, 1 घंटे में जिन हाजिर करना है, 1 घंटे में जादू तोड़ना है, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे फिक्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 दिन की मेहनत नहीं है। खुरूफ सवामित के जो उमूमन चिल्ले होते हैं वो 13 दिन या 39 दिन के चिल्ले होते हैं, तब आप इसके अमिल बन जाते हो। लेकिन चांद ग्रीन में इसके आमिल आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में बन जाते हो, वो तावीज़ात की हो, वो पढ़ाई की हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें, उम्मीद है कि आपको डाउट क्लियर हो गए। और इसके अलावा ये तमाम बातें मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ। इसको आप मनगढ़ंत भी कह सकते हैं, इसको आप तजर्बात भी कह सकते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये किसी के साथ, यानी किसी से ली हुई बातें नहीं है। इन तमाम बातों का ज़िम्मेदार, इन तमाम बातों का मैं खुद अपने ऊपर ज़िम्मा लेता हूँ कि ये तमाम बातें मेरे अपने ऊपर की किए हुई हैं। मैं अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, ये किसी के मुशाहिदात नहीं है, मेरे दिल की बातें हैं, मेरे तजर्बात हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ वाज़िह की है। इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, शायद इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की बातें मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है, इस तरह की बातें किसी किताब में मैंने पढ़ी नहीं है। हालाँकि मेरा 5-6 साल किताबों का मुतालिया है, और 18-18 घंटे मेरे पास किताबों का मुताले का वक़्त है, कि मैंने इतना टाइम दिया है, और लाखों के बिल मेरे पास किताबों के पड़े हुए हैं। इसलिए ये तमाम बातें मेरे अपने तजर्बात पे हैं, अपनी निगरानी पे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे है। इसको कोई मानता है, मान ले, इसको कोई नहीं मानता, इख्तिलाफ रख सकता है, क्योंकि ये बातें ही ऐसी हैं। जिस तरह मैंने बात की कि हम पाकिस्तानियों का इस चांद ग्रीन पे हमारी ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं है, असर ही नहीं है, हमें इसके अच्छे-बुरे कोई नताइज नहीं मिल सकते। लेकिन क्योंकि साथ है, और उस साथ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए हम इस अमल को करना चाहते हैं। रोशनी का हमें असर नहीं होगा, रोशनी हमें तकलीफ़, परेशानी नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि हाथ साथ है, और बात सातें कई-कई सालों बाद आती हैं, तो उस साथ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में जुमा के दिन और 9 बजे से स्टार्ट होके 3 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो इस साथ से हम फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि इसमें हम हरूफ सवामित का अमल कर सकते हैं। मैंने ये तमाम तर तफ़सीली बातें इसलिए की, इसलिए इतना आप लोगों से टाइम लिया, क्योंकि ये बहुत पेचीदा बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, और इसके मुतालिक लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अब जिन लोगों ने इस अमल को करना है, उनको क्या चाहिए? उनको तो सबसे पहले ये बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आप हमसे रूहानी तौर पे राब्ते में रह सकें। पहले मैं इस तरह की बातें नहीं करता, अब मैंने ये बातें स्टार्ट की हैं। किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी। जो हकीकत है वही बताऊँगा, जिस चीज़ का तजर्बा हो जाता है वही कहूँगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग हमसे रूहानी राब्ते में रह सकें। ख़ुरूबी सवामित के 2 अमाल मैं आप लोगों को बता दूँगा इस वीडियो में। एक अमल
543। इसकी तादाद हमेशा याद रख लेना, हरूफ सवामित की तादाद 543 है। और हरूफ सवामित है क्या, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अखदर दर, सस्ता, कलम, ये सीन है और ये स्वात है, ये त्वे है, ये एन है, ये काफ है, ये लाम है, ये मीम है, ये वाव, यहाँ कलम। अखदर, सस्ता, कलम, इस तरह हरूफ शामिद लेके जाते हैं। ये 13 हरूफ है, लेकिन जब इसकी तादाद निकलती है तो 543 निकलती है। 543 यानी अलिफ और हे को जमा कर लेते हो, फिर दाल को जमा करते हो, फिर रे को, 543। और जो इसका फिर मुफरद अदद निकलता है, मैं उसको भी यहाँ पे कर लूँ कि क्या निकलता है, कभी मैंने इसके बारे में गौर नहीं किया। 9, 12, 12, माशाल्लाह। इसका जो मुफरत अदद निकलता है, या हम सिंगल अदद कहते हैं या एंड वाला अदद कहते हैं, वो 3 निकलता है। अब इसको मैंने कैसे निकाल दिया, 543 है, 543, 5 4 3, फिर इनके दरमियान में हम प्लस लगाएंगे तो 5 जमा 4 9 हो गया। और 9 के साथ अगर हम 3 को जमा कर लेते हैं तो 10 11 12, ये 12 निकल कर आते हैं। अब 12 भी सिंगल अदद नहीं बनता, तो इसके दरमियान हम दोबारा प्लस लगाएंगे जो कि 3 निकलता है, और इसका आखिरी अदद 3 निकलता है। तो ये तो वैसे एक आदत की बात थी जो कि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। 543 की तादाद में या तो आप लोग अखदर सस्ता कलमो पढ़ ले, आप लोग या तो 543 की तादाद में अखदर सस्ता कलमो पढ़ ले तजवी पे किसी भी तरीके से। और अगर इसका आप लोग तावीज़ करना चाहते हो, तावीज़ के आमिल बनना चाहते हो, तो फिर आप लोगों ने ये अखदर सस्ता कलमो 543 मरतबा लिख देना है। लिख देना है, आप लोगों ने कागज़ पे लिख ले। उसके लिए कोई भी चीज़ ले सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे कागज़ दिखा देता हूँ किस तरह का कागज़ चाहिए। ये एक कागज़ है, ये मेरे और काम के लिए, तावीज़ात के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई 10-15 किलो अभी लाया हूँ मैं। तो ये कागज़ है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक अखदर सस्ता कलम, और इसके इस तरह लाइन लाइन लाइन, ये इतनी साइज़ का कागज़ आपके लिए बहुत होगा। मैं इसको अब पाड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरे सारे गिनती के कागज़ है। फिर भी मैं थोड़ी सी आपको किसी जगह से बता देता हूँ, बल्कि मैं इसी का ही रिस्क लेता हूँ क्योंकि ये मेरे गिनती के कागज़ है, तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, मैं एक और साइज़ का कागज़ लेकर आया, साइज़ वही है लेकिन ये इजाफी है मेरे काम के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह गिनती करवाना या किस तरह क्या हिसाब करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अखदर सस्ता कलमो। इस तरह आप लोगों ने 543 मरतबा बना देना है, सही है। फिर एक एक तावीज़ को अलहदा करना है। ये मिसाल के तौर पे नज़र लाइट की वजह से नहीं आ रहा, ये इस तरह नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इस तरह के फिर अलहदा कर देना है और फिर इसकी तावीज़ बनाने हैं। तावीज़ किसी भी शक्ल में, कोई भी किस तरह भी मरोड़ ले, क्या कर ले, कुछ भी कर ले। मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने फोल्ड कर दिया। और इसका अब आसान तरीका ये है कि आटे के गोलियों में जो बनाना होता है, तो आटा नरम कर ले। यानी एक तो हम आटा रोटी पकाने के लिए बनाते हैं, वो ज़्यादा सख्त होता है। एक आटा पानी वाला बना लेते हैं, पानी वाले से मुराद ये कि हम उससे नरम रोटियां बनाते हैं। उसमें से इसको इस तरफ डाल दे और फिर निकाल ले, फिर डाल दे, फिर निकाल ले, तो ये बआसानी इसको आटा लग जाएगा। वो आप बेशक सारे एक साथ भी डाल सकते हो, या इसकी आसान मिसाल ये है कि जो हम आलू वाले पकोड़े बनाते हैं ना, और उसको नरम पानी वाला, उसके लिए मसाला बनाते हैं, तो इसमें ये तावीज़ इस तरह डाल ले, निकाल ले, तो ये गोली बन गई। समझ ले कि ये आटे में भिगो गया, गोली बन गई। दूसरा वो पेड़े भी बना सकते हैं, उससे भी कोई हर्ज नहीं। तो ये अमल भी बता दिया कि आप लोगों ने अगर तावीज़ लिखना है, फिर इसी को पानी में बहाना है, ये बात याद रखना है। इसको पानी में बहाना है, पानी इसके लिए शर्त है, बाहर ना रखें, क्योंकि फिर वो कहीं भी उसके कहीं वो आछी में भी जा सकता है या किसी और तरीके से भी, तो उस तरह ना करें। जिनके पास पानी मुयस्सर नहीं है, फिर इस अमल को ना करें। फिर 543 की तादाद में सिर्फ इसकी पढ़ाई कर ले, अख्तर सस्ता कलमों की पढ़ाई कर ले। अब ये पढ़ाई तो हमने की, एक ज़कात निकाल दे, 2 निकाल दे, 3 ज़कात अगर निकाल सकते हो तो ये आदत भी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, जो कि मैंने कहा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आदत इसकी निकल आई। यानी 543 मरतबा अव्वल वाहिर, 7 मरतबा या 3 मरतबा दरूद शरीफ, फिर अख्दर सस्ता कलमों दरमियान में 543 मरतबा अमल पूरा कर दिया। फिर 5-6 मिनट के बाद दोबारा 543 मरतबा का अमल स्टार्ट कर ले, अव्वल वाहिर दरूद शरीफ के साथ, फिर ख़त्म किया।
फिर एक और तीसरी ज़कात 543 की नियत से कर ले। ये वो लोग जो तावीज़ नहीं लिख सकते, अगर तावीज़ लिख सकते हैं तो एक कर ले, फिर तावीज़ लिख ले, अगर टाइम बचा तो फिर दोबारा कर ले, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा है इस बार 2025 में, गालिबन कोई 5-6 घंटे का टाइम है, तो ये बआसानी हो जाएगा। और फिर इस तावीज़ात को आप लोगों ने पानी में बहाना है। इसकी सदका अब क्या करना है? पहले तो मैंने कहा था ना कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि हम आपसे रूहानी तौर पे राब्ते में रह सकें। इसका सदका अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है तो 543 मरतबा यानी 543 रुपये आप लोगों ने इसका सदका देना है किसी भी चीज़ का। इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि 543 रुपये ही हो, 543 रुपये ही हो। दूसरे मुल्क में जो लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में, तो वहाँ 543 रुपये की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फिर वो इसकी कोई 13 रुपये या 13 रियाल की तादाद बना ले, क्योंकि इसकी तादाद एक 543 है, एक 13 है। जो हम पड़ोस मुल्क में रहते हैं वो अब बेशक 543 रुपये ही दे, लेकिन जो अगर यूएस में, कनाडा, बाहर मुल्क में जिसका डॉलर या यूरो या दिनार वगैरह है, तो सिर्फ $13 या 13 दिनार वगैरह उसका भी सदका दे सकते हैं। और ये सदका आप लोगों ने खुद देना है। कुछ चीज़ों में मैं बताता हूँ कि इसका सदका मुझे देना है, कुछ में कहता हूँ कि पलाची इसको देना है। इसका सदका आप लोगों ने खुद देना है। और अगर आप लोगों ने तावीज़ लिख दिया तो फिर उस पैसों को मछली में, समंदर में ऐसी चीज़ लेके वो पानी में आप लोग बहा सकते हो, पानी में फेंक सकते हो। बेशक वो चावल हो, बेशक वो कोई और चीज़ हो जो पानी में जा सके। तो इस बात का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। अगर अख़दर सस्ता कलमों का सिरप पड़ाएगी तो फिर आप लोग उसके चावल वग़ैरह बाँट सकते हो, लेकिन ये आप लोगों ने बज़ात खुद करना है, ये किसी और से करवाने वाला अमल नहीं है। जिसने अमल किया वही करेगा। इस बात को ख़ास ख़याल रखना है। बेशक 1-2 दिन बाद भी कर ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन करना बज़ात खुद है। जो बाहर मुल्क में है, यानी एक तो हम पाकिस्तान और एक पड़ोसी मुल्क, ये 2 अगर 543 दे रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दूसरे मुल्क में है, उनकी करेंसी, क्योंकि 543 तो बाज़ लोगों की पूरी महीने की सैलरी होती है, तो सिर्फ़ 13 रियाल, 13 डॉलर से भी काम चला सकते हैं, और या अपने जेब को देखते हुए जितना वो जेब इजाज़त देता है। क्योंकि इसके बाद फ़ौरन आपके जो साथी होते हैं, मुवक्किलात का हो, जिन्नात का हो या रूहानी ताकत है, तो आपको फिर आगाही भी दे सकती है। इसके अलावा एक और वीडियो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 2 अमाल और है, तो उस पे भी बात करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।